the IB, or my technical expertise can be fulfilled. Okay. So, uh, which polymer is used to make bulletproof sheets? Polyvinyl, I guess. I'm Uh, not sure, but polyvinyl is used. Polyvinyl or polyamide? Polyvinyl are used. I'm not. I'm just guessing, sir. Okay. It's polyamide. Polyamide. Yes, Okay. connecting with Mm. NH2. Yeah, NH2 amide. Okay. Amide group, that is. Yes, yes. Yes. As I also belong to chemistry background, I have done BSc in chemistry, mathematics, and Yes, physics. sir. So I have Yes, sir. questions for you. And Yes, sir. do you know isomerism? What is isomerism? Isomerism basically means that if a compound is an isomer, then it has same molecular weight but different structure. Different structure. Yeah. स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाई गई है? स्टीरियोकेमिस्ट्री से बेसिकली होता, हाँ पढ़ाई तो गई है मतलब, लेकिन वो 12th के बैकग्राउंड में पढ़ाई गई है। केमिस्ट्री में पढ़ा है मैंने, और हमारी केमिकल इंजीनियरिंग में इतना कुछ काम का नहीं है। बस स्टीरियोकेमिस्ट्री मुझे लगता है कि भाई पोजीशन के हिसाब से आपका मतलब कैसे अटैच होते हैं आपके। तो ये जो आइसोमेरिज्म और मेसोमेरिज्म ये सब फीचर्स हैं, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी कराए जाते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक हाँ केमिस्ट्री सर, में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली होती है। ओके ओके। सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? व्हाट सर? टिंडल इफेक्ट? No, sir, I have no idea about this. Okay, Tyndall effect. And which element is found most in earth crust? Earth crust, basically aluminium. I have asked which element is found most in earth crust. I'm not talking about metal. Metal, sorry, like that can be oxygen, I guess, sir. It is clear that it is oxygen. Yeah, it is oxygen only. Okay. If it is metallic element, then it is aluminum. Metallic would be aluminum, and if an element is there, it's oxygen. Okay. I will know. And what is the basic difference between element and compound? Element is basically what I can say. A single atom is made of single atom element, and molecules is basically made of multiple atoms. Or when two or more compounds are bonded, it becomes a compound. Okay. Then what is H2? H2 is a molecule, sir. H2 is element and molecule. Compound. As a compound, it is. It is compound. H2 is compound, I guess. Yes, sir. Are you sure it's compound? I'm not sure, sir, but I'm guessing this thing. Okay. Hydrogen, hydrogen is an element. It's formalized H2, so hydrogen is an element. H2 is an element, sir. H2 again, you have said that it is an element. Yeah, it is an element, sir. Okay. Kindly go study it after interview, so that your basic knowledge about chemistry will be clear. Not okay, sir. Subject to guess. Basic सवाल पूछेगा, right? Yes. Basic चीज पूछ जाएगी आपसे। अब जैसे आपने H2 को बता दिया कि ये कंपाउंड है, फिर बोला आपने एलिमेंट है, तो आपका गेम खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Yes, sir. Who is better, Ravi Shastri or Rahul Dravid? Whom you think is better? Sorry, I couldn't hear you, sir. Who is better in your view, Ravi Shastri or Rahul Dravid? In coaching field, basically. No, not in any field. According to your view. Sir, like both, like we can't compare the era of two players because Ravi Shastri played in the 80s eras and Rahul Dravid was in the 90s and 2000 era. So comparing era would be a little unfair on both the players. But if we just statistically speak about the records only, Rahul Dravid is far more, like I can say, better than Ravi Shastri when it comes to batting record or overall record in test or one-day matches. Recently, he's made a head coach of Indian team. Yes, sir.
Okay. Yeah, yes, sir. Rahul Dravid is made a head coach after this T20 World Cup. He will be joining the Indian team and will like has a contract till 2023 World Cup, and he would be replacing Ravi Shastri, who was the coach from 2027, like post 2027 Champions Trophy until this World Cup. Okay. Whom, Like okay. yes, Whom do you like to see winning T20 World Cup? this year. Yes. Yes, sir. As India is out of the race of this T20 World Cup, I see Australia winning the World Cup. I Why would like New to see. Zealand? Why not New Zealand? So it's my personal favorite. Like if there is the second team that I would always choose after India, that is Australia only, because I like their spirit, their aggressiveness on the field, their dedication on the field, basically. But most of cheaters belong that team also. Like David Warner, Steve Smith. So And it's basically what thing happened that cricket, so many things happen, and after like after like 2015 World Cup, there was some new ICC rules came that that were too disadvantage to the bowlers. So I guess that like it's an unfair game for bowlers. So they did some things, and but they are getting also. we face most sledgings from Australians in the battleground or in grounds also. So yeah. So sledging means I can't say that sledging, but it's like a mental game basically, and they are using like a. In our philosophy also we have this philosophy given by Chanakya, Sam, Dam, Dand, Bhed. So basically I consider Australia that uses all four type of method I to think like implement Samdam Dandapet opposition. is Chanakya Niti, not given by China. Whom? Yeah, Chanakya Niti. I told Okay. Chanakya Niti only. Okay. Yes. I think it is China. Who is head coach of Mumbai Indians in 2021 IPL? Mahela Jayawardene. Uh, head coach, not batting coach. नहीं, head coach Mahela Jayawardene थे. What about Shane Bond? Shane Bond तो bowling coach थे, bowling consultant, director थे उनके. Lasit Malinga? लसित मलिंगा आपके लगता है उनके bowling consultant थे. टीम डायरेक्टर आपके शेन बॉन्ड थे और बॉलिंग कंसल्टेंट. सर वैसे भी मेरी टीम मुंबई इंडियंस फेवरेट टीम नहीं है. लाइक आई लव केकेआर. KKR. Okay. Why you love KKR most? सर बेसिकली मेरे फेवरेट प्लेयर थे जो उसके अंदर स्टार्टिंग 2008 से, मतलब जब टीम आईपीएल फॉर्म हुआ था तो मेरे फेवरेट प्लेयर सौरव गांगुली थे. तो उसके अंदर थे तो तभी से लव शुरू आ रहा है, मतलब फेवरेट टीम. गांगुली आपके फेवरेट है. उनको दादा की उपाधि किसने दी? दादा की उपाधि मुझे लगता जेफरी बॉयकॉट ने दी थी. बॉयकॉट ने दी है दादा. चलिए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इसको देखूंगा और फिर आपको रिव्यू करूंगा इसके बारे में. यस सर, जेफरी बॉयकॉट ने मुझे दी है ना. प्रिंस ऑफ कलकत्ता भी बोलते थे उनको. प्रिंस ऑफ कलकत्ता. बंगाल टाइगर भी बोलते. बंगाल टाइगर तो मतलब बहुत लोगों को बोले आ रहे हैं. एक हमारे इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, उनको भी टाइगर ऑफ बंगाल बोलते थे. Specifically in terms of cricket, Dada is only Bengal tiger in our Indian team. यस सर. और एक और उनकी उपाधि है लाइक गॉड ऑफ ऑफसाइड. ओके, गॉड ऑफ ऑफसाइड. चलिए ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट. टेल मी organized crime and unorganized crime, given at least two examples for each. Okay. So organized crime include a group of members, like four or more members basically in organized crime, where they do some activities in an organized way. And unorganized crime is such type of crime where they are not organized, like they are loosely built, and they should do some different type of crimes basically. And unorganized crime may be a robbery in a train, that may be unorganized crime, or theft. The what we say in Hindi pocket mar jo rehte hain, sir, they can also be called as unorganized crime. And organized crime may be like transnational, like we see drugs trafficking, it is an organized crime. Or we can say according to you, planning is most important in organized crime, and I can say that just immediate action taken in unorganized crime, according to situation. Okay. They do long-term planning. Organized crime person do long-term planning, and
unorganized to short term like. Okay. So Yes. now tell me about the problem faced by Northeast peoples, Northeast sisters, seven sisters. Yes, sir. Hmm. So basically, northeastern India, basically there are 8 states that are found in northeast. Yeah, First is the first tell me the name of eight state. As you have mentioned eight state, I have called seven sisters only. So tell me okay, okay, each name. okay, seven sisters. So basically, seven sisters are first is Arunachal Pradesh, Hmm. second is Nagaland, third is Hmm. Manipur, Hmm. fourth is Mizoram, Hmm. fifth is Meghalaya, Hmm. sixth is Tripura, and seventh is Assam. And which one will be eighth according to you? Sikkim. Okay. Yes. So now tell the issues facing by that people living in northeast area. Yes, sir. So broad issues that northeastern states are facing, basically, they are mostly tribal states. Hmm. There are more than 100 plus tribes that are present in Northeast, and Hmm. they have that ethnic tension between them. So, there are some issues of claiming of the land by other tribal groups. Hmm. That is one of the issues. Like, because of their tribal ethnicity, there are some issues. Second thing is their location is like far from the mainland India. So, Hmm. like from the before the independence, also and after independence, the development or the speed of development or any governance Connectivity is scheme a has big not been. issue. According to you, Hmm? connectivity. Connectivity, basically. Yes, so connectivity is the main basic second issue. Hmm. Third is its proximity to the borders. Like it is like most of the northeast states are connected to some international borders. Hmm. So basically, there are problems of basically from Bangladesh border. There are some problems to Assam, Tripura, and Meghalaya. There is a problem of immigration, Hmm. illegal immigration Hmm. from Bangladesh. From Myanmar, there is a problem of infiltration of guns, smuggling, human trafficking, and that's Hmm. because from there's a golden triangle that is present on the that very close to the northeastern states. So that's also one problem. Hmm. So, that's why this has given rise to some issues in that area. Okay. So all you have told me that these are mainly national issues creating internal or external disturbance. But Yes, sir. I want to talk about the people of that area facing problems. Like जैसे हम लोग अपने नॉर्दर्न इंडिया की बात करें जो मैदानी भाग है यहाँ हम लोगों Mhm. के रहने का खाने पीने का बहुत अच्छी सी सब चीज रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके महाराष्ट्र Mhm. में भी सब कुछ अच्छे से अवेलेबल है कंपनी भी Mhm. आ जाती हैं आईटी सेक्टर का भी अच्छा ग्रोथ है एजुकेशन सिस्टम भी Mhm. अच्छा है ज- Mhm. कदम कदम पे यूनिवर्सिटीज कदम कदम पे कॉलेज एवरीथिंग इज देयर Yes, sir. तो Mhm. ये इससे कंपैरिजन करके आपको बताना था चलिए इससे आगे बढ़ते हैं Okay, ठीक sir. है Mhm. and which new issues are faced by India after COVID pandemic second wave. So after COVID pandemic, basically there is a huge economic burden that has come to the India because our GDP has contracted to minus 21% in the last quarter only. It has tried to like to go to the 2018 level. It should like it would have to grow at 21% per year Mhm. basically. Mhm. And if it is growing at this rate, it would take 2023 to reach to the economy Mhm. that was in the 2018. Basically, that is the issue. Mhm. Second is the huge unemployment that has been faced because there was some like surveys carried by CMI, Center of Monitoring Indian Economy. It has said that 15 crore job has been lost during the period of this 2 years period of COVID pandemic. So high unemployment issue. Third issue is the food security. That's happening because eventually when people don't have money in their hand, they are bound to face food security. I mean, they are bound to face this issue only about food security. So that's the third issue. And fourth issue, it has highlighted the weak healthcare system in India, basically. Mhm. Like when we saw in the second wave of the pandemic that we have so much depletion of oxygen. It's like there's demand for oxygen at all major cities, and some the hospital facilities were not there. They were not for burial also.
So, Okay, and there were okay, not bed available for okay, COVID patients. So basically that. okay. In previous question, you have mentioned Golden Triangle. So how many countries are connected with Golden Triangle? So Golden Triangle, basically three countries are connected. Three. I think, Name. Myanmar, Laos, and Thailand. What about Vietnam? Vietnam is basically, I think that it is basically mm, a hub of illegal, what say, guns basically, or artillery basically. गढ़चिरौली का नाम आपने सुना है? हाँ सर. कहाँ पर है ये? Sir, basically it's location in southeastern part of the Maharashtra. ठीक है, तो अभी पिछले कुछ अगर सालों से देखा जाए तो गढ़चिरौली में नक्सलवाद की समस्या एकदम जीरो होने को है। वहां पे अभी हाल ही में कुछ दुर्घटना नहीं देखी गई है। तो वहां पर ऐसा क्या एक्शन लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वहां के पीपल की तरफ से, कि वहां पर नक्सलवाद की समस्या खत्म हो गई? हाँ सर, बेसिकली सर गडचिरी जो इलाका है तो पहले मतलब एक देखा जाते थे तो लाइक मतलब पहले के टाइम में पूरा ईस्ट महाराष्ट्र इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोंदिया, गडचिरोली एंड चंद्रपुर, वहां पे नक्सलिज्म की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। अब करंट सिचुएशन के अंदर तो गोंदिया के अंदर निग्लिजिबल मतलब आपकी नक्सलिज्म है भी नहीं, और चंद्रपुर जो मेन आपका सिटी है उसके अंदर भी नहीं है। थोड़ी सी छुटमुट घटना जो गडचिरोली में होती रहती है, लेकिन सर उसको टैकल करने के लिए एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रेटेजी भी अपनाई गई थी महाराष्ट्र के अंदर। बेसिकली सम स्पेशल पुलिस ग्रुप जो लिए थे जो लोकल कैडर से बने, मतलब गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट के जो लोकल पुलिस मतलब लोकल बंदे रहेंगे उनको लेकर के लोकल बटालियन बनी गई, और उनके साथ सीआरपीएफ के जो आपका रैपिड क्या बोलते हैं आप, रैपिड एरिया क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसके अंदर नक्सलियों को बहुत ज्यादा मारा गया, मतलब नक्सलिज्म को खत्म किया गया उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सेकेंड चीज देखा गया कि बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम उनके लिए स्पेशली मेंशन किया गया है, जैसे गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट आपका हो गया, उसके बाद में जो चंद्रपुर वगैरह बाकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपके विदर्भ इलाके में आते हैं हमारे महाराष्ट्र के, जो कि एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उनको मिला गया है हमारे संविधान के अंडर आर्टिकल 371। विदर्भ को आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड मिलता है। तो वो भी देखते हैं कि भाई वहां पे डेवलपमेंट वगैरह हो गया, तो जो नक्सल आइडियोलॉजी थी बेसिकली इनके जितना डेवलपमेंट देखा है, जैसे चंद्रपुर सिटी को अब इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सिटी मानी जाती है, गडचिरोली को भी बहुत अच्छी सिटी मानी जाती है, और बेसिकली जो सिटी के आसपास के इलाके में है तो वहां पे तो नेग्लिजिबल क्या जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने नक्सलवाद की समस्या का सफाया तो कर दिया, लेकिन इससे ही जुड़ा एक एरिया है जिसका नाम है पुणे। ठीक है, पुणे, यस पुणे। हाँ, तो पुणे के आसपास हमने अर्बन नक्सलिज्म की समस्या को पैदा कर दिया हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? केवल हाँ या ना में कहें बस, तब आगे बोलूंगा मैं। सर मुझे तो मतलब इतना नहीं लगता कि इतना बड़ा इश्यू है वहां पे फिलहाल अर्बन नक्सलिज्म का। तो ये फिर अर्बन नक्सल क्या है? ये शब्द कैसे मार्केट में आ गया? नक्सल बेसिकली मतलब जो है, तो सबसे पहले तो अर्बन नक्सल इनको नहीं बोला जाता था, पहले इनको इंटेलेक्चुअल नक्सल बोलते थे पहले, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा था कि आपने अगर मतलब इतने बंदों को दिल्ली में कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को उठाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब मांगा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था सरकार से 2013 के टाइम पे कि भाई आप ये इंटेलेक्चुअल नक्सल बोलते हैं, मतलब ये कौन क्या है। तो गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में जवाब दिया था कि जो आपके इंटेलेक्चुअल नक्सल है वो बेसिकली जो नक्सलिज्म के अंदर जो उनके कॉजेस वगैरह होते हैं उनको इंटेलेक्चुअली सपोर्ट करते हैं और उनको प्रोपोगेट करते हैं। ये मुझे बेसिक नॉलेज है। जो अर्बन नक्सल टर्म है बेसिकली वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस उस टाइम पे जो 2018 के अंदर जब एक पुणे के अंदर यलगार परिषद हुई थी, तो उसका टर्म दिया गया था अर्बन नक्सल का। तो उसी का मीनिंग भी वही सेम टाइप होता है कि आप इंटेलेक्चुअल एक सपोर्ट देते हैं नक्सलिज्म को। तो इंटेलेक्चुअल को सपोर्ट देने वाले कुछ नाम बता सकें आप तो बताइए। इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देने के लिए मतलब सर मैं जनरली तो कुछ जानता नहीं हूँ, बट जो एफआईआर के अंदर लिखाया गया था उनके नाम मैं बता सकता हूँ। आपके फादर स्टैन स्वामी थे, उसके अंदर पकड़े गए यलगार परिषद के अंदर। उसके बाद में आपके पकड़े गए थे, नाम तो नहीं याद आ रहा अभी मुझे, पर अभी फिलहाल में स्टैन स्वामी, क्योंकि उनका वो उनकी कस्टडी मतलब आपकी जेल में डेथ हो गई थी, उसके लिए मुझे याद है फिलहाल में। There are some 9 to 10 people at home.
वरावर राव थे, दे आर डिटेंशन द यूएपीए बेसिकली। गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, सुधा भारद्वाज, नवलखा, यस सर, ये गौतम सब। नवलखा और एक कोई क्रिश्चियन भी थे। हाँ चलिए, सर, एक स्टैन स्वामी थे और एक अम्बेडकराइट कोई संगठन से जुड़े थे, उनका नाम भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है। आप मुझे बताएं, जो एनएसए एक्ट, एनएसए है और यूएपीए है और पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में चलता है, इन तीनों के बारे में हाँ बताएं। सर, एनएसए मतलब उसका फुल फॉर्म तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। बेसिकली कोई भी इंटरनल इमरजेंसी, मतलब इंटरनल अगर कोई घटना इंटरनल मतलब हो जाती है तो उसको पकड़ने के लिए एनएसए आपका नेशनल सिक्योरिटी, मतलब कोई भी मतलब कोई भी अगर कोई इंसान ने अगर ऐसी घटना वगैरह कर दी जिसके तो अराजकता अगर फैला रहा है तो उसके लिए एनएसए एक्ट बनाया गया है। और पीएसए उसी का जम्मू कश्मीर का वर्जन है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, क्योंकि ये 1980s के बाद में लाया गया था। मतलब कि आपको कहने का है कि आदमी या फिर कोई जो अभियुक्त है वो घटना कर दे तब किया जाता है एनएसए नहीं से। सर, ये प्रिवेंटिव डिसीजन करने वाला है, अच्छा, करने ये वाला है। प्रिवेंटिव डिसीजन। हाँ, एक्चुअली अभी करने आपने वाला पीछे है या बताया कर कि चुका है। वो, फिर आपने कहा कर चुका है। आप कंफ्यूज नहीं हैं। सर, नहीं सर, करने वाला है या कर चुका है, दोनों के लिए सर बने हुए हैं सर दोनों के लिए एनएसए। एनएसए और पब्लिक सेफ्टी है, हाँ हाँ, जबकि दोनों क्योंकि हम प्रिवेंटिव दोनों के लिए डिटेंशन है। अरेस्ट करते हैं ना। हाँ सर, जबकि दोनों ही प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एनएसए और आपका पीएसए। यस, बोथ आर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ओके एंड व्हाट अबाउट यूएपीए? सर, वही मतलब यूएपीए के अंदर भी वही करता है जो अराजकता फैलाना चाहती है, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया के खतरे में जाती है, कोई भी ऐसी घटना, उनको अरेस्ट करने के लिए यूएपीए रखा गया है, वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ही है। Okay, are you sure about it that UAPA is with preventive detention act? यूएपीए तो हाँ सर, आई गेस होगा ही सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन। Okay, श्योर नहीं हूँ सर, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में मुझे। okay, ठीक है। एक्चुअली यूएपीए प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है, हम्म, यूएपीए है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन प्रिवेंशन एक्ट। एक्ट या जब अनलॉफुल एक्टिविटी हो चुकी होती है हम्म, तब लोगों को डिटेन किया जाता है। ओके, हम्म, हम्म, चलिए, देखिए, एक अपने यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और वो खड़ी हो रही है जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे डिस्टरबेंस होने की वजह से, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, हम्म, थोड़ी बहुत पाकिस्तान की तरफ से भी इलीगल इमिग्रेशन की समस्या। हम्म। तो इलीगल इमिग्रेशन की समस्या से निपटने के लिए भारत के पास कैसा कानून है? कोई इंटरनेशनल कानून या नेशनल कानून है कुछ? सर, इलीगल इमिग्रेशन के लिए तो मुझे कुछ मतलब आइडिया नहीं है कि इंडिया के अंदर कोई है। अभी फिलहाल में तो पार्लियामेंट में बात चल रही थी कि एक रेफ्यूजी लॉ हम ला सकते हैं हम्म, उसके लिए। और सिलेक्टिवली अब पिछले दिनों के अंदर सीए की बहुत बात हो रही है, जिसके अंदर हम सिलेक्टेड रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देना चाहते हैं। रोकने के लिए एज सच तो मतलब सीए को बोल सकते हैं कि एक रोकने के लिए लॉ है, बट वो कुछ नहीं, लाइक अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन की बात अगर करूं तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं, भारत इनको किस लॉ के तहत, कोई इंटरनेशनल यूएन का लॉ है या फिर इंडिया में कोई ऐसा लॉ है उसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट करता हो, या फिर इसकी क्या पॉलिसी है? पॉलिसी बताएं। इलीगल इमिग्रेशन जो होता है उसको ये कैसे हैंडल करता है? सर, इलीगल इमिग्रेशन को तो मतलब हैंडल करने का मुझे मतलब अभी तो कोई आइडिया नहीं, बस केस लगा पा रहा हूँ ये चीज का कि इलीगल इमिग्रेशन तो होते रहता है। जब पकड़े जाते हैं तो उनको ट्राई करते हैं कि फॉरेन कंट्री में सेंड कर दे, जो आपके फॉरेन ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर उनको डाल के फिर उनको चेक करते हैं कि भाई आपका। चलिए ठीक है, ठीक है। हम्म, ये बताइए कि सीए का जिक्र आपने अभी किया। हम्म, सीए आपका जो है सिटीजनशिप देने वाला एक्ट लाया गया, जिसमें हम्म, एक पर्टिकुलर रिलीजन या ग्रुप है उसका नाम उसमें नहीं लिया गया। तो जो हम्म, अदर ग्रुप्स हैं, अदर कंट्रीज से आएंगे, बाहर से आएंगे अपने देश में, इनके हम्म, अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कैसे जाग जाएगी और ये कैसे हम लोगों के लिए खतरा नहीं पैदा करेंगे? यस, मतलब जब सीए ये जो बिल बन रहा था तो कोई मतलब जितने भी ऑपोजिशन वगैरह वॉइसेस थे उन्होंने भी ये क्वेश्चन उठाया था कि लाइक
इफ अगर कोई समझ लीजिए इन केस अगर जो 6 मेंशन रिलीजन्स है, अगर हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश अगर वो स्टेटेड अगर उन 6 रिलीजन्स में से भी हो, फिर भी उनके अंदर ये आपकी जो नेशनलिज्म की भावना है वो कैसे जाग उठे, क्योंकि वो समझ लीजिए आपके पिछले 70 सालों से वही स्टेट में रह के आ रहे हैं, वही देख के आ रहे हैं। तो ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है सर, मुझे लगता है। नहीं तो ये तो वैलिड क्रिटिसिज्म है, ये तो मैंने क्रिटिसाइज हम्म, किया, आप इसका जवाब दीजिए कि आप इसको कैसे देख पाते हैं, इस पर आप टिप्पणी करिए। आपने तो यस प्रश्न के सर। ऊपर एक प्रश्न और बना, मतलब उसी तरह कर दिया बात, है ना। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ इस मुझे पे आप मतलब अपना बेसिकली पर्सनल क्वेश्चन। व्यू दीजिए कि आप इस पर क्या सोचते हैं, कि क्या ऐसा करना सही होगा, और अगर गलत होगा तो क्या अमित शाह गलत है। नहीं सर, मतलब मुझे लगता है कि मतलब जितने भी आपके जितने 6 रिलीजन्स को एक्सेम्पशन दिया गया है, उनका जो एक पॉइंट है कि उनका जो रिलीजियस प्रताड़ना हो रही है हमारे 3 स्टेट्स के अंदर, जिनके हम माइग्रेंट्स को अलाउ कर रहे हैं हमारे सिटीजन देने के लिए, वो एक वैलिड पॉइंट है सर। उसमें कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, मतलब चलिए, ये अगर देखा जाए तो। ह्यूमैनिटी के बेस पे एक अच्छा इनिशिएटिव है, हाँ, एक अच्छा मतलब मैं तो ह्यूमैनिटी सर के लिए। एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोसेस अच्छा है। अब हाँ। सर हम उस चीज के अंदर हम एक चीज और कर सकते हैं कि भाई जितने भी इमिग्रेंट्स आने वाले हैं हम्म, उनको हम सिटीजन दे रहे हैं, तो उनका एक हमारे पास लिस्ट तो दे सकते हैं ना। तो लाइक वी कैन सी देयर बिहेवियर और ऑब्जर्वेशन फॉर सम इयर्स कि भाई ये कितना इंडिया को हमारा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज मतलब जितना मैं हिस्ट्री पढ़ा हूँ, ऐसी एक्सरसाइज 1950s के बाद में भी बहुत सारे लोगों पे की गई थी। जब इंडिया हम्म, के अंदर मास माइग्रेशन हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, तब भी हम्म। इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ऐसे लोगों के पीछे लगे जिनको शक हो रहा था कि ये अराजकता फैला सकते हैं। तो ठीक है। और हमारे पास तो ऐसे ही बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं, हम एक नया काम अपने लिए क्यों पैदा करें। ये बोझ है एक तरह का, इसको हम क्यों लें अपने ऊपर। क्या इसके लिए कोई दबाव है कि लेना पड़ेगा, जरूरी है सिटीजनशिप लेना। देना पड़ेगा। हाँ नहीं सर, सिटीजनशिप देना नहीं देना मतलब वो तो सरकार के हाथ में। अब सरकार की एक सोच है कि हम्म, अगर समझ लीजिए कोई हिस्टोरिकल रॉन्ग अगर वो कम्युनिटी से हुआ गया है, क्योंकि सरकार बहुत सारी आपके लॉज भी बताती है कि एक नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था जिसके हम्म, अंदर प्रोटेक्ट किया म्यूचुअली, लाइक माइनॉरिटीज का म्यूचुअल प्रोटेक्शन किया गया था। उसके मतलब उसके मुताबिक पाकिस्तान और आपकी बांग्लादेश नहीं रह पाई है। हम्म। ठीक है, तो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट तो बनता है, चलिए क्योंकि ठीक है, इंडिया का ठीक है। कोशिश भी किया था कि हमने पीस और वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन रखना है पूरे देश चलिए, के अंदर, और हमारी मतलब कोई भी समस्या तो नेबर से ही शुरू ठीक। होगी ना। आपके महाराष्ट्र में एक कुछ समय पहले घटना हुई है मीडिया की तरफ से, जिसमें एक मीडिया पर्सन को अ, जेल में भी पहुंचाया गया है, और हम्म, वहां पे आरोप ये थे कि मीडिया वाज सेलिब्रेटिंग पुलवामा अटैक एंड गेनिंग जस्ट टीआरपी। तो हम्म, आप ये वाली घटना हमें बताएं, क्या था इसके, इसमें जो जो लोगों के नाम थे उनका नाम लिखिए, ठीक। और बताइए ओके कि सर। वो इसका प्रोजेक्ट स्टेटस क्या है। ओके सर, सो बेसिकली घटना ये हुई थी कि एक रिपब्लिक आपका रिपब्लिक मीडिया है जिसके एडिटर एंड फाउंडर अर्नब गोस्वामी हैं। हम्म, उन्होंने उनका कुछ चैट्स वगैरह लीक हुआ था, हम्म, जिसके अंदर वो आपके BARC ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन जो एक टेलीविजन रेटिंग देती है जिससे TRP बनता है, और बेसिकली जो TRP वगैरह जिस चैनल को जितना मिलता है उनके अंदर उतनी एड अट्रैक्ट होते हैं। हम्म, तो बेसिकली वो जो दो पर्सन थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो बार के हेड थे, जो पूर्व हेड थे, अभी फिलहाल में नहीं है वो, उनके अंदर हम्म, कुछ तो भी व्हाट्सएप चैट्स लीक हो गई थी, हम्म, जो कि एक अनइन्फॉर्म सोर्स है। बेसिकली अब तक उसको कोई इन्फॉर्म सोर्स दिया नहीं गया है, हम्म, बट बताया गया था उसके अंदर ये हुआ था कि ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि लाइक देयर आर सम चैट्स दैट कि हाँ वी वॉन ग्रेट टुडे, जब पुलवामा अटैक हुआ था। और हम्म। अर्नब गोस्वामी को बहुत सारी चीजें ऐसी भी पता थी कि अब इसके खिलाफ कोई रिटेलिएशन होएगा तो वी विल विन बिग, ऐसी चीज मतलब दोनों के अंदर शुरू थी। तो ये एक घटनाक्रम था। पर सर जो तो अभी जेल में डाला। हाँ इस हाँ। इस तरह किसी को, जो हमारे कॉन्फिडेंशियल टर्म्स हैं, उनकी जानकारी पहले से ही हो जाना हमारी सोवरेनिटी के लिए और इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो हाँ सर, ये तो मतलब हाँ तो सर। इसका सोल्यूशन आप क्या पाते हैं कि इसमें कैसे एक्शन लिया जाए, किस तरह काम किया जाए। सर बेसिकली तो लाइक हमें मतलब वी शुड नॉट हाइड द फैक्ट कि जो भी प्रेजेंट सरकार है, मतलब कोई भी सरकार होती है, वो एक अपने फेवर के जर्नलिस्ट रखती है और एक उनके अपोजिशन में होते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा होता कुछ है।
हाँ सर, प्रेजेंटली मतलब कोई भी सरकार मतलब हो जाए एक लाइक बिफोर 2014 देयर वाज यूपीए गवर्नमेंट सरकार। गवर्नमेंट रखती है या लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं कि चलिए हम गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हैं और कुछ लोग अपोजिशन का सपोर्ट करते हैं, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है? नहीं सर, वो कैसा होता है मतलब उसके एक चीज होती है कि मतलब सरकार से प्रॉक्सिमिटी रखना उनको उनको मतलब वो एक म्यूचुअली बेनिफिशियल चीज होती है कि अच्छा, आप क्या, सरकार के प्रॉक्सिमिटी रख। चलिए ठीक है, एक टर्म है हम्म किचन कैबिनेट का, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो किचन हम्म किचन कैबिनेट में आउटसाइडर्स को भी इंक्लूड किया जाता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं उनमें आउटसाइडर्स, तो क्या मीडिया पर्सन किचन कैबिनेट में एंट्री पा चुके हैं? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है, बट तो मीडिया को तो तो। फिर इतनी हाई सेंसिटिव जो कॉन्फिडेंशियल न्यूज है, ये अगर मीडिया हम्म। पर्सन के पास पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन किचन कैबिनेट के पास होना चाहिए कि ये किचन कैबिनेट में है, क्योंकि इतने हाई सर डिसीजंस, किचन क्या। हाँ सर। इतने हाई डिसीजंस, हाई लेवल के डिसीजंस किचन कैबिनेट के आसपास से ही उठते हैं या लिए जाते हैं। तो आई हाँ सर, थिंक वो तो आई थिंक दे आर कनेक्टेड विद किचन कैबिनेट। अच्छा, दे मस्ट बी, बट अब हमको अभी तो फिलहाल में उनके डायरेक्ट लिंक्स तो पता नहीं है। और बेसिकली सेकंड चीज मैं आपको बैकग्राउंड ही बताने वाला था उस स्टोरी का कि जो अर्नब गोस्वामी का जो पूरा घेट हुआ था, बेसिकली उनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन व्हाट्सएप चैट के कनेक्शन के बेसिस पे नहीं किया गया था, बात से रिलेटेड कनेक्शन में नहीं किया गया था उनको अरेस्ट। उनको करेक्शन उनको अरेस्ट किया गया था कि उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे पे और सोनिया गांधी पे कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स किए थे। ओके, जब पालघर में कुछ लिंचिंग के इवेंट्स हुए थे, तो एक शो चलिए पे उन्हें चलिए, तो उस इसमें अरेस्ट किया गया था। और ये ओके व्हाट्सएप जो सोर्सेज है वो मुझे लगता है कि मतलब अनवेरिफाइड सोर्सेस है तो। ओके 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 हम्म, ओके। अभी हाल ही में अपने इंडिया में मुंद्रा एयरपोर्ट पर बहुत भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई है, ड्रग्स पकड़ी गई है। हम्म, हम्म, तो क्या अपना इंडिया एक अ, नशे का एक अड्डा बन चुका है, बहुत बड़ा अड्डा? इतनी बड़ी खेप भारत में आई है कंपोज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। सर बेसिकली तो मुझे लगता है कि मतलब एक रियलिटी ऑफ फैक्ट है कि मतलब 1985 से एनडीपीएस एक्ट के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग गांजा, अफीम वगैरह जितनी भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है वो सब बैंड है। बट आज भी सर कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर हम चले जाए, कोई भी बेसिक कॉलेज के अंदर चला जाए, तो गांजा और कोई भी बाकी के ड्रग्स है वो एकदम फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। हैव यू टेस्टेड इट एवर? नो सर, आई एम नॉट टेस्टिंग। ओके But during my college days, I used to know like from which agent you will get this thing, that thing, all that stuff, sir. okay, So if you basically, मतलब at that time you have knowledge about that agent that sells illegal drugs, then you have contacted police or not? which contacted, sir? जब आपने वो जो इन इलीगल ड्रग्स का सेलर के बारे में आपको जानकारी होती है, तो आपने उसे हम्म पुलिस को नहीं बताया कि यहाँ पर ये इलीगल ड्रग्स लाते हैं और बच्चों को बिगाड़ते हैं, हमारी जनरेशन को खराब कर सर रहे हैं? सर एक इंसिडेंट था सर, मैं पुलिस की तरफ भी मतलब एक बार गया था उस इंसिडेंट को लेके। हम्म बट मतलब वो एक दो धारी तलवार हो जाती है उस चीज के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पीते ही है, तो आपको लगता है कि भाई अगर समझ लो तूने नहीं पीना तो भाई हमारा मजा क्यों खराब कर रहा है, ये चीज भी एक हो जाती है। और सेकंड थिंग, जो जो मैं पुलिस के पास में गया भी था, क्योंकि हमारे कॉलेज के लग के ही पुलिस था, तो उनकी हम्म तरफ से एक वो वार्म रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हाँ भाई हम इमीडिएट एक्शन ले सकते। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मतलब जैसे उन लोगों से मैं बात भी करता था, और हम्म। जैसे मतलब कि पुलिस का भी कुछ ना कुछ उनके अंदर एक मिलावट होती है कि मतलब उनकी एक तो चलिए चलिए वॉच के ठीक है, अंदर वो वो तो आते आते रहते मिल ही भगत है। चलिए, हैं। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी अ, मोदी सरकार ने या भारत सरकार ने प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और डिस इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी पर कई कदम आगे बढ़ाए हुए हैं, है ना? हम्म। तो आप इस पॉलिसी के बारे में क्या जानते हैं और इस पर भारत को क्या लाभ होगा या हानि होगी? सर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट ये जो प्रोसीजर है, ये 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद से लगातार चलती आ रही है। हम्म बट आई कैन सी कि जब ये आपका जब से ये प्रेजेंट सरकार आई है आफ्टर 2014, उसका जो डिसइन्वेस्टमेंट का रेट है या जो आपका प्राइवेटाइजेशन का रेट है वो बहुत तरीके से बढ़ गया, क्योंकि हम्म इसके अंदर वो बहुत सारे पीएसयू भी हो गए, जैसे बीपीसीएल हो गया। हम्म उसके बाद में आपकी एयर इंडिया होगी, हम्म उसके बाद में जो डिसइन्वेस्टमेंट आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स के अंदर भी किया गया, तो एक लार्ज स्केल
डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, उसके साथ में जो हम जो एंटिटी को समझ सकते हैं कि जिसको कोई छू नहीं सकता है, क्योंकि वो एक हमारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उनको भी मतलब बेचने का मतलब एक बेच रहे हैं उसको बेसिकली। तो तो इसका मुझे लाभ बताइए, क्या होगा सर लाभ? लाभ होता है, हाँ सर, ये मतलब लाभ अगर देखा जाए तो मतलब एक चीज होता है कि सरकार जो बता रही है कि एक ऑपरेशनल इफिशिएंसी बढ़ जाती है, अगर कोई भी अगर हम मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दे या कुछ टैक्स प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दे, तो एक ऑपरेशनल मैनेजमेंट बढ़ जाती है, थोड़ा लेजीनेस जो स्टाफ के अंदर होता है कम हो जाता है। और एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक चीज मतलब मैं भी मानता हूँ, और जो सरकार ने भी एक तर्क दिया है कि कोई भी चीज के अंदर जो प्राइवेट कंपनी है वो दे आर टारगेट बाउंडेड। ठीक है, तो टारगेट बाउंडेड जो भी काम वगैरह होते हैं तो वो अच्छे से कर लेती है, जो कि हमारे गवर्नमेंट कंपनी के अंदर लैक किया जाता है। ठीक है, चलिए और ठीक उसके साथ में इफिशिएंसी वगैरह भी बढ़ जाती है, तो वो बहुत सारी चीजें की है। ठीक और डिसइन्वेस्टमेंट से जो जो डिसइन्वेस्ट करने का आपने पैसा भी आता है वो भी सरकार को मिलता है, तो वो हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं सोशल चलिए सेक्टर स्कीम्स के अंदर। ठीक। आप हमें बीजेपी गवर्नमेंट की 5 कमियां बताइए। 5 कमियां? यस, जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उनकी 5 कमियां? बीजेपी गवर्नमेंट की 5 कमियां बताइए। हाँ, सर मतलब जो करंट चल रही है वही ना, बीजेपी की? यस, ओके ओके, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सो तो 2014 से मतलब सर कोई भी सरकार होती है, मतलब जो भी सरकार आती है वो तो देश का अच्छा ही चाहती है, बट कोई ना कोई सरकार मतलब आपकी इंडिया की कोई भी सरकार है उसके अंदर जस्ट टेल बहुत मी अच्छे अच्छे 5, काम भी किए हैं। जस्ट टेल मी हाँ सर 5 बहुत। bad decisions only, don't elaborate हाँ it सर। more. हाँ हाँ। तो मतलब अच्छे काम भी होते हैं, कुछ कुछ बुरे काम नहीं बोल सकते, लेकिन उनकी जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होता है वो बराबर से नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट मुझे जो कमी लगी पर्सनली मैं बता रहा हूँ, तो एक डिमोनेटाइजेशन हो गया, ओके, जो मुझे लगता है कि जो जिसके जो फ्रूट्स थे अब तक के खिल के नहीं आए हैं, एंड जो सकता सेकंड? है। सेकेंड सेकेंड इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, थर्ड? बोथ हेवा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। आइडिया ऑफ जीएसटी वाज वेरी गुड, बट इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से जीएसटी का हुआ है उसके फल अब तक हमको प्राप्त नहीं हुए हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? ये सर बता रहे हैं सर। थर्ड रीजन मुझे लगता है सर कि जो माचो, ये वर्ड यूज करना चाहिए कि मुझे सर आप करेक्ट करिएगा, बट जो एक रिलीजियस नेशनलिज्म को वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक कम्युनलिज्म की भावना पूरे इंडिया के अंदर बढ़ा रहा है, तो उसको मैं क्रिटिसाइज करता हूँ सर। ओके, जो फोर्थ? रिलीजियस नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी लेके आ रहे ओके हैं। ओके, इट्स ओके। नाउ कम टू द फोर्थ। हाँ, फोर्थ घटना अगर हम देखे जाए बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर, तो इकोनॉमी का जो हैंडलिंग किया है वो अच्छा नहीं किया है चलिए ठीक है। आप ओवरऑल 5, इकोनॉमिक में। और 5। पांचवी सर, कोविड क्राइसिस को और अच्छे से मैनेज करना चाहिए था अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। इंडिया के अंदर। सो कमिंग टू द लास्ट, ओके, आई थिंक यू शुड ट्राई फॉर another exams, and I think you will not be a good intelligence officer. क्या सर? I think you should try for another exams, and because you will not be a good intelligence officer. सर मुझे मतलब लाइक व्हाट आई थिंक दैट आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स टू बिकम एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। आई डोंट थिंक दैट आई हैव एनी ऑफ दिस, I don't lack any qualities to become a good intelligence officer, and if there is any quality that is missing during my training period, will try to overcome into that. Okay, okay. Thank you. All the best for your future. I'm disconnecting the phone. Yes, sir. Okay. Yeah, thanks, sir.